Hello, good morning. Assalamu alaikum everyone, and I hope everyone is doing fine. Welcome to Vivid, and this is physics 10th class. We are going to start our lesson. As we discussed yesterday, we have started doing simple harmonic motion, chapter 10. This is the first chapter of 10th class. Let's have a recap of the knowledge which we discussed yesterday. These are the content of the topic. We discussed yesterday about the spring oscillations, a mass attached to a spring. If an object vibrates or oscillates back and forth over the same path, each cycle taking the same amount of time, the motion is called periodic. I hope you must remember that we discussed this example. This mass is attached to a spring, and at this position in A part, you can see in this picture, the first part is showing that x is equal to 0. It means x is displacement over here, and we can say that the mass has not covered any distance in this position. X is equal to 0, and there isn't any force acting upon this mass and this position. But if we move towards the next position, B part, you can see that the mass has been moved from this position from x is equal to 0 to somewhere on the right side. This right side shows that now the mass has covered some displacement. This displacement is shown in this form, which is here. You can see at the bottom of this mass, x is greater than 0 now. Mass has covered some displacement and some force is acting upon this mass now, because when the mass has been moved from this point from x is equal to 0, it has covered some distance and there is some force which is stored in this mass. That force is called restoring force. In the third picture, you can see that the mass is now moved from x is equal to 0 towards the left side. There is some force stored in it now, and it is, you can say that this is the restoring force which is being stored in this mass when the mass has been moved from right to left or left to right somewhere from this 0 point. When the displacement was 0, there was no force, but when the mass has covered some displacement, when x is greater than 0 or x is less than 0, some restoring force, some force has been stored in this mass. That force is called restoring force. And this motion, this movement of this mass is called periodic. Simple harmonic motion and spring oscillation. This is another part. We assume that the surface is frictionless. When the mass was moving from right to left, look at this picture again. When the mass is moving from right to left again, we assume that there is no other force which is acting upon that mass. It means that surface is frictionless. It's not resisting its motion. There is not any force which is acting upon that mass which resists its motion. After that, there is a point where the spring is neither stretched nor compressed. This is the equilibrium position, from where the mass has started moving, where this at this point distance is equal to 0, x is equal to 0, and the force exerted by the spring depends on the displacement, how much distance the mass has covered. We can say that force is directly proportional to that displacement. Directly proportional means if the distance is greater, the force is greater, whether it will be towards right or it is towards left. Assalamu alaikum, Sajil. Can you hear me?
यस, ओके सजील, आई कैन एक्सप्लेन, मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देती हूँ। और अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर आप सरफेस को फ्रिक्शनलेस एज्यूम करें, आप सिर्फ उसको देखेंगे, उसके ऊपर कोई फोर्स मास के ऊपर नहीं लग रही। अगर आप इस पिक्चर को दोबारा देखें, इन दिस पिक्चर, ए पार्ट में, फर्स्ट पिक्चर की ए पार्ट में मास जो है वो 0 पॉइंट पे है, द डिस्प्लेसमेंट इज 0 एट दिस पॉइंट। उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे फोर्स लगी उसके ऊपर, एंड और मास राइट साइड पे मूव किया। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा। डायरेक्टली जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, फोर्स x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x इज द डिस्प्लेसमेंट, जो उसने डिस्टेंस कवर किया मास ने, फोर्स उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड माइनस के इज डायरेक्ट, वी यूज दिस कांस्टेंट व्हेन वी कन्वर्ट द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी साइन में, तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज होता है, दिस माइनस के। ये जो माइनस के है ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी साइन में ख़त्म करने के बाद आया। माइनस के कांस्टेंट है यहाँ पे। F इज इक्वल टू माइनस के। अब इनमें देखें, द माइनस साइन ऑन द फोर्स इंडिकेट्स दैट इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अब माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि वो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स वो वाली फोर्स है जो उस मास में जमा हो जाती है जब हमने उसको अपनी पोजीशन से मूव किया है। वो वापस अपनी जगह पे जाने के लिए उसमें रिस्टोर हो जाएगी, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। जब वो उसमें मूवमेंट आई है, उसको मूव किया गया उसने अपनी जगह से, तो उसके अंदर एक फोर्स स्टोर हो गई। उस फोर्स को कहा गया है रिस्टोरिंग फोर्स। एंड और ये जो माइनस साइन F इज इक्वल टू माइनस के है, ये माइनस साइन उस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, and constant means this is not going to change, it will remains the same। k की वैल्यू चेंज नहीं होगी, k हमेशा सेम रहेगा। and the force is not constant as well। F is equal to kx, इसमें सिर्फ k कांस्टेंट रहेगा, k चेंज नहीं होगा, फोर्स भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों चेंज होते रहेंगे। फोर्स जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी कम फोर्स होगी। सेम इज विद एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड भी फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अगेन, लुक एट दिस पिक्चर। अब इस पिक्चर में क्या है, फर्स्ट पार्ट में यू कैन सी दैट मास हैज सम वेलोसिटी। उसके ऊपर आएगी तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो वाला पॉइंट है जहां से उसने मूवमेंट स्टार्ट की है, जहां पे उसका डिस्टेंस 0 था। डिस्प्लेसमेंट उसका 0 से स्टार्ट होगा, जहां तक मास ने कवर किया होगा, जहां से मास 0 से जहां तक भी मूव किया जाएगा। अब अगर जहां पे फर्स्ट पिक्चर में आप देखें x इज इक्वल टू माइनस ए है, माइनस ए का मतलब है कि उसने माइनस ए डिस्टेंस कवर किया है 0 पॉइंट से। देन एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ए यहाँ पे, इसका मतलब कि 0 से लेकर जहां भी उसने डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस है जो उसने मास ने कवर किया इस पॉइंट तक। अ साइकिल इज अ फुल इसको एक साइकिल कहते हैं। पहले राइट साइड पे है, नाउ इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी x इज इक्वल टू माइनस ए है। फिर वो बी पार्ट में आप देखें x इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि कोई फोर्स लग रही है और वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया दरमियान में, x इज इक्वल टू 0, जहां उसका डिस्टेंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से 0 हो जाता है। लेकिन इट अगेन कीप्स ऑन मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड।
दैट इज यू कैन से x इज इक्वल टू a। वहां पे डिस्प्ले उसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हो गया, दिस इज a। वो वहां पे फिर नहीं रुका क्योंकि उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर थी, स्प्रिंग की वजह से उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोर हो गई, जिसकी वजह से वो दोबारा मूव करेगा टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0, और फिर वापस जाएगा इन ई पार्ट। यू कैन सी वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे आ गया। इसमें कहते हैं साइकिल। अब जितना टाइम उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे वापस अपनी पोजीशन पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे गया, दोबारा राइट हैंड साइड से मूव करते करके दोबारा लेफ्ट साइड पे वापस आया अपनी पोजीशन पे, अगर वापस आ गया साइकिल कंप्लीट होगी। साइकिल कंप्लीट होने में जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड होगा, जितना टाइम उसको लगेगा, उस टाइम को कहते हैं पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स सजील। आपको इसमें ये होगा कि आप टॉपिक क्लियर कर लें। आपको जो क्वेश्चन होगा यू कैन आस्क मी। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। द टॉपिक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप उसको दोबारा बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। आप इसको गौर से पढ़ लें, इसी नोट से आप हेल्प आउट लेंगे तो यही बुक में भी आपको वो टॉपिक समझ आना शुरू हो जाएगा। सजील आप अनम्यूट की बुक है। ग्रेट होगा। आपको अभी जितना मैंने समझाया है, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज measured फ्रॉम इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, आई एम जनरेटिंग अ पोल। यहाँ पे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आएगा व्हाट इज measured and from equilibrium point। इज इट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होती है या एक्सेलरेशन? फेडरल बोर्ड फिजिक्स की बुक। शेड्यूल बिल्कुल ठीक है, टॉपिक सेम है। आप उसमें से हेल्प यही नोट्स में से हेल्प आउट लेके जब आप उसको कवर करेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर एक ऑप्शन चूज करनी है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। What is measured from equilibrium point? First option is displacement and second option is acceleration. ये भी बुक से ही है, इस ये ज़्यादा एलेबरेट करके नोट्स बनाए हुए हैं। आपकी स्क्रीन पे पोल नज़र आ रहा है आपको, आपका क्वेश्चन का आंसर उसको देना है। ऑप्शंस नहीं शो हो रहे, उसके नीचे ही देखें ऑप्शंस भी, क्वेश्चन के साथ ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, मैं अब एंड कर रही हूँ पोल। पोल नहीं शो हुआ, ओके। अब आपको रिजल्ट शो हुए हैं जो मैंने शेयर किए हैं? नहीं। अच्छा, अब
पोल नजर नहीं आया? आपको रिजल्ट्स मिले? मैं एक और पोल जनरेट करती हूँ, फिर आप चेक करें कि आपको पोल मिला है कि नहीं। मुझे पोल ही नहीं शो हुआ रिजल्ट। अच्छा, अभी आप मैं एक और जनरेट करी पोल, आप उसका आंसर देखें आपको नजर आया है या नहीं। That's a blank. You can choose an option, acceleration and period। ये पब्लिश हुआ, आप देखें अब। There are two options. You can choose one option from it, acceleration या period। Are you using a mobile or a laptop? आप मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हैं? Mobile, okay। Can you use a laptop? But it should be visible on the phone as well, on the mobile as well। मोबाइल पे भी ये नजर आएगा। Okay, I'll sort it out later on। अब I'll check this later on। I'm ending this poll। मोबाइल रोटेट किया हुआ शो तो होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, शो तो होना चाहिए, हो भी रहा होगा। मे बी यू आर डूइंग सम कोई टेक्निकल, उसमें आप किसी और तरह से ले रहे होंगे। मैं इसको आई सॉर्ट इट आउट फॉर यू। मैं इसको बाद में चेक करूँगी। आई एम शेयरिंग द रिजल्ट्स अगेन। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इन दिस पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको पीरियड कहा जाता है। And what is a frequency? Frequency is the number of cycles completed per second। अब frequency होती है कि एक सेकेंड में जितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं, दैट वुड बी द फ्रीक्वेंसी। कि एक साइकिल कंप्लीट हुआ है तो वन होगी फ्रीक्वेंसी, अगर टू साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं तो टू फ्रीक्वेंसी होगी, अगर थ्री साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं तो थ्री होगी। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल। अब ये इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इफ द स्प्रिंग इज हंग वर्टिकली, अगर स्प्रिंग को वर्टिकली इसको हैंग कर दिया जाए ऊपर से नीचे, वर्टिकल होता है टॉप टू बॉटम, हॉरिजॉन्टल होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर वर्टिकली हैंग कर दिया जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अब उसको द ओनली चेंज इज इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन विच इज एट द पॉइंट वेयर द स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चेंज सिर्फ इतना आएगा उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहाँ पे मास का डिस्टेंस जीरो था, x इज इक्वल टू जीरो था, सिर्फ उस पोजीशन में चेंज आएगा विच इज एट द पॉइंट वेयर द स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे मास के ऊपर टू फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं, एक तो स्प्रिंग वाली फोर्स, दूसरी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ की वजह से होती है, जमीन की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, F इज इक्वल टू एम जी। ऊपर की फोर्स जो स्प्रिंग की तरफ से आ रही है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है स्प्रिंग की तरफ से। एंड देयर आर टू फोर्सेस नाउ, टू फोर्सेस एक्सर्ट होंगी उसके ऊपर। एक्स क्या होगा, अब डिस्टेंस मेजर होगा इस पॉइंट से जहां पे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स है, वो तो फोर्स है। दिस पॉइंट वेयर फ्रॉम दिस पॉइंट एक्स ओ, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू मेजर दैट x from the distance, वही distance। एक सेकेंड, मैं आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन अगेन।
Can you see it? Can you see my screen? I am generating a poll again. Yes or no? Check one more time that you can see the poll or not. Okay, great. Can you see my screen? Check the poll. अभी poll check करें जो मैंने generate किया आपको आया? No. Again, how is it possible? You can see the poll on your screen. Okay, I'm ending this. Okay, wait. Can you see it now? अब ये स्क्रीन पोल वाली, इसमें पोल नजर आ रहा है आपको? आपकी ऑप्शंस आ रही होंगी आपकी स्क्रीन पे. आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आएंगी. आपने ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से चूज करना है. कैन यू सी द ऑप्शंस? आपको ऑप्शंस नजर आ रही है? नो. Okay, we will look into this later on. I'm ending this poll. Sharing the results. Again, get back to the topic. You can see the picture. The spring is hung vertically from top to bottom. ऑप्शंस शो हुई, अब स्क्रीन शो हुई है. ओके ओके फाइन. इफ द स्प्रिंग इज हंग वर्टिकली, अब ये वर्टिकली हैंग हुआ है स्प्रिंग टॉप टू बॉटम. इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रही है स्प्रिंग की तरफ से जो कि इक्वल है 1 F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एक फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है ज़मीन की तरफ से, अर्थ की तरफ से, वो है F इज इक्वल टू एम जी. वो उस मास के ऊपर और ग्रेविटेशन के ऊपर डिपेंड करती है. जितना मास हो ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी. इसी तरह x नाउ मैयर्ड फ्रॉम हेयर, इस पॉइंट से, इस लाइन से मास x डिस्प्लेसमेंट उसका मैयर होगा. अगर वो इस लाइन से ऊपर जाएगा तो उसका डिस्टेंस माइनस में होगा. अगर इस लाइन से नीचे जाएगा तो इसका डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा. दैट वुड बी ग्रेटर देन 0. 0 से ग्रेटर होगा तो वो प्लस में लिखा जाएगा. 0 से लेस होगा तो उसके साथ माइनस यूज होगा. Which is at the point where the spring force equals the gravitational force. अब ये पॉइंट जहाँ से डिस्टेंस मैयर करना है, ये लाइन डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है. डॉटेड लाइन से डिस्प्लेसमेंट मैयर होगी. डिस्प्लेसमेंट मैयर करनी है यहाँ से, क्योंकि एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग की फोर्स उस मास के ऊपर लग रही है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की तरफ से उसके ऊपर एक्सर्ट हो रही है, दोनों फोर्सेस सेम है. दे बोथ आर सेम. दैट्स व्हाई this is the point from where we are going to measure the displacement. This is the equilibrium point. Equilibrium point पे दोनों forces same है. Now come to the definition. अब definition क्या है simple harmonic motion की? Simple harmonic motion होता क्या है? Any vibrating system, जिस तरह अभी हमने एक mass की example ली है जो spring के साथ attached था, अगर आप उसको vibrate करवाते हैं, उसको move करवाते हैं right side से left side पे,
इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. अब एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम, इस तरह का कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम होगा वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव माइनस एक्स जो हमने कंसिडर किया था उसको इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इज ऑफन कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. कोई भी वाइब्रेटिंग सिस्टम जिसके वेयर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मीन्स जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी. ऐसी मूवमेंट को, ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है. This was all from this. As you cannot see the poll, अब आपको poll नज़र नहीं आ रहा, otherwise I would have generated the poll. You can ask me any question if you have. You can write down a question. कोई problem, कोई question है तो you can ask me. Okay, fine. उसमें लर्न करने में इजी होगा. यस, यू आर राइट, लर्न करने में इजी होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में, अभी आप इस टॉपिक से पढ़ लें, मैं नोट्स भी अपलोड करूँगी. उसके बाद जब आप बुक से पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड समझ के. फेडरल बोर्ड में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. आपको हर चीज़ समझ के करनी पड़ चाहिए ताकि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह से पूछ सकते हैं. फेडरल बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, रोट लर्निंग नहीं होती है. आप याद कर लें, इट्स गुड, लेकिन यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. गुड आइडिया, वैसे आई वर्क ऑन इट. इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन सो दैट्स, जब आप बुक से करवाएंगी तो पता होगा कि क्या लर्न. आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक पढ़ें, आपको यही सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी. ये उसी को एक्सट्रैक्ट करके सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो फर्स्ट टॉपिक है उसका स्प्रिंग वाला, मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग वाला, ये सारे उसी की एग्जांपल है. अगर आप उसको पढ़ेंगे समझने के बाद तो आपको समझ आएगी कि उसको किस तरह से याद करना है. जब आपको समझ आ जाएगी तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप उसको लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. अच्छा, अब क्लास का टाइम ओवर हो गया है तो अब आप ग्रेड 10th में. ओके, कल फिर विल सी यू टुमारो. ओके, अल्लाह हाफिज़.